Hello my dear students and welcome to my channel. In this video I am going to continue with the fourth chapter of physics of class 9, pressure in fluids and atmospheric pressure. In the last lectures we have covered till some of the numericals of liquid pressure and atmospheric pressure. Now next there are certain numericals given in your book in exercise 4a. So I want you to solve this exercise 4a by yourselves. In case you need to know the solution of certain questions, then the entire exercise has been solved and put up in a link. The link is given in the description box of this video. Click on that link and you will find the solution for exercise 4a, all the questions, all the numericals. Okay? And I hope that you will be able to solve all the numericals, because in the previous lectures I have covered all types of numericals. In this video I am going to continue with the topic atmospheric pressure. The next topic is atmospheric pressure. So take your pen and start taking the notes. We know what is atmospheric pressure. It is the pressure exerted due to the atmosphere. So let us elaborate it and write properly. The thrust exerted per unit area on the earth surface due to the column of air. किसके वजह से? एयर कॉलम के वजह से. Due to the column of air is called atmospheric pressure. Okay, so if I look at this definition, it is clearly saying thrust exerted per unit area, and we know thrust exerted per unit area का मतलब ही क्या होता है? Thrust per unit area मतलब ही pressure, यानी this is actually pressure. So pressure on earth surface किसके वजह से? Due to air column के वजह से. इसे हम बोलते हैं atmospheric pressure. ठीक है? Now how we will measure atmospheric pressure? There is an instrument known as barometer. All these things we will study after some time. Right now we will demonstrate the presence of atmospheric pressure with certain experiments. So we will discuss some of the experiments which are given in your book and important from the examination point of view also. So we will discuss certain important experiments which demonstrate that yes, atmospheric pressure exists. So the topic is demonstration of atmospheric pressure. Now the first experiment is collapsing tin can experiment. Collapsing tin can experiment. So as the name suggests that a tin can will collapse. Now how do we do that? Before taking down the notes, rather than exactly the experiment is written in your book, so I'm not going to write the exact text. I'm only going to explain this. You can write it in your own words also. What we will do, we will take a metallic can like this. ठीक है? समझने की कोशिश करो. ये कैन खाली है अभी, इसके अंदर मैं पानी भरूंगा. I will fill water and still the lid is open. अभी lid खुला हुआ है कैन का, lid is not closed. मैंने इसके अंदर पानी भर दिया है. And then what I do, I will start heating this can. Since it is a metallic can, so the can will not burn. So only the water inside the can will start heating. गर्म होने लगेगा पानी, and after some time steam will start coming out. अब जैसे ही यहाँ से steam निकलने लगे, यानी पानी उबलने लगे, पानी गर्म हो गया है, then I will remove this flame. And then I will close this lid. अब मैं इस lid को close कर दूंगा. अब क्या हुआ? इसको close करने के बाद अभी ये lid ढक्कन लगा हुआ है in this bottle and it is filled with hot water, as well as in this space steam is filled.
water vapor is filled. So this can right now has steam and hot water, and it is completely filled with steam and hot water. जो खाली जगह बचा हुआ है वो एक्चुअली खाली जगह नहीं है, steam is filled over there. So ये भरा हुआ है hot water से और steam से, and the lid is closed. ठीक है, यहां तक समझ में आया? अभी क्या है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, मतलब बाहर का जो प्रेशर है, एटमॉस्फेयर जो इस कैन पे लगा रहा है, वो प्रेशर, that is the pressure applied from outside on the outside walls of the tin can. The atmospheric pressure is equal to the inward pressure. ये पानी का प्रेशर और ये स्टीम का प्रेशर जो अंदर से बाहर की तरफ लग रहा है, वो प्रेशर दोनों बराबर है. And that is why the tin can is not collapsing. The pressure towards inside and the pressure towards outside, both are equal, obviously equal, और तभी कैन हमारा कोलैप्स नहीं करेगा, अपने आप कोलैप्स नहीं कर रहा है. लेकिन अगर बाई चांस एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा हो जाए अंदर का वेपर प्रेशर से, बॉटल के अंदर का प्रेशर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर ज्यादा हो जाए, सो क्या होगा, दैट कैन विल कोलैप्स. यस और नो? बाहर का प्रेशर अगर ज्यादा हो गया तो कैन अंदर की तरफ कोलैप्स कर जाएगा. कॉमन सेंस. तो ये कब होगा? अभी तो नहीं हो रहा है. अब मैं क्या करूंगा, इस बॉटल को, इसको बहुत सावधानी से हैंडल करना है, बिकॉज द बॉटल इज वेरी हॉट राइट नाउ. यू हैव टू होल्ड इट विथ सम काइंड ऑफ प्लायर्स और होल्डर्स और ग्लव्स. ओके, तो इसको अब हम क्या करेंगे, इस बॉटल के ऊपर, ये थर्ड स्टेज है, इस बॉटल के ऊपर मैं कोल्ड वाटर या आइस वाटर डाल दूंगा, या फिर मैं इसको ठंडा आइस वाटर एक बाल्टी में लूंगा और उसमें ये बॉटल को मैं डाल दूंगा. आई विल प्लेस दिस बॉटल इनसाइड वेरी कोल्ड वाटर विथ इट्स लिड क्लोज्ड. लिड इज क्लोज स्टिल. अब क्या होगा, जैसे ही मैं इसको ठंडा पानी में डालूंगा, अंदर का जो पानी है, द वाटर इनसाइड इट विल सडनली कूल डाउन. ट्राई टू अंडरस्टैंड. विल सडनली कूल डाउन द वाटर इनसाइड इट विच वॉज हॉट. ये कोल्ड बन जाएगा, इसका टेम्परेचर डिक्रीज कर जाएगा, और यहाँ जो स्टीम था, ये स्टीम का जो टेम्परेचर था वो भी डिक्रीज कर जाएगा, अचानक से ठंडा हो जाएगा. एज ए रिजल्ट, वेन एवर थिंग्स, मैटर का टेम्परेचर कम हो जाता है, तो वो क्या करता है, वो सिकुड़ जाता है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन आता है. सो दिस विल हैपन. सो द एंटायर कंटेंट ऑफ द बॉटल विल नाउ कम क्लोजर, मीन्स इट विल श्रिंक, और वी कैन से इट विल कोलैप्स. इट विल कंडेंस, कम हो जाएगा, और अंदर का प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा, बिकॉज वैक्यूम विल बी क्रिएटेड, बिकॉज इनसाइड प्रेशर विल डिक्रीज राइट नाउ. सारा स्टीम और जो वाटर है वो सिकुड़ जाएगा. सो देयर विल बी अ वैक्यूम क्रिएटेड राइट नाउ इनसाइड द बॉटल. ओके, एंड एज अ रिजल्ट द प्रेशर इनसाइड द बॉटल विल डिक्रीज. एंड बट बाहर का प्रेशर तो डिक्रीज हो नहीं रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो क्या हो जाएगा, बाहर का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा. एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल बी मोर देन द प्रेशर इनसाइड द बॉटल. एज अ रिजल्ट व्हाट विल हैपन, द बॉटल विल कोलैप्स. इट विल कोलैप्स, इट विल सिकुड़ जाएगा, मुड़ जाएगा, and the bottle will collapse. You can see the diagram drawn in the book, and it is all the text which I have explained is exactly written over there. You can write it in your own words as I have explained. Main चीज है concept को समझना. ठीक है, I hope clear हो गया है. Similarly, we will also see some consequences of atmospheric pressure, some other consequences. तो इसको मैं मिटा देता हूँ. Next is sucking a drink with a straw. कोल्ड ड्रिंक जब हम पीते हैं, सपोज ये ग्लास है, इसके अंदर कोल्ड ड्रिंक रखा हुआ है, some cold drink is present, and there is a straw, and the person is sucking the drink from the straw. तो ये ड्रिंक अपने आप ऊपर कैसे आ जाता है, what actually happens? Okay, now देखो इसको लिखने का तरीका क्या एग्जाम में, समझो एक एक चीज पॉइंट वाइज समझो. जैसे ही हम ये पाइप को डुबाते हैं पानी में या कोल्ड ड्रिंक में, तो क्या अपने आप ये पानी ऊपर आने लगता है? द आंसर इज नो. सिर्फ डुबाने से ही, if I just immerse the straw in the drink, water will not come out of its own. Why? Because
देयर इज एयर फिल्ड इनसाइड द स्ट्रॉ, इस स्ट्रॉ के अंदर क्या भरा हुआ है, एयर भरा हुआ है। तो ये जो एयर जो प्रेशर लगा रहा है इस लिक्विड के ऊपर, और इस लिक्विड के ऊपर कौन सा प्रेशर है, एयर का प्रेशर है, बाहर का एटमॉस्फेरिक एयर का प्रेशर है। तो ये जो लिक्विड सरफेस के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, दिस लिक्विड इज ट्राइंग टू गो इनसाइड द पाइप ड्यू टू द pressure of the atmosphere on the free surface of water, but at the same time the air which is filled inside the straw is applying pressure on the liquid and preventing it to enter. Try to understand what I'm saying. तो दो प्रेशर काम कर रहा है, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो इस लिक्विड सरफेस पे लग रहा है और इसको नीचे की तरफ पुश कर रहा है, जिसके वजह से ये लिक्विड पाइप के अंदर घुसेगा, बट एट द सेम टाइम इक्वल अमाउंट ऑफ प्रेशर इस स्ट्रॉ के अंदर जो हवा है पहले से भरा हुआ, वो हवा लगा रहा है इस लिक्विड के ऊपर और उसको अंदर घुसने से रोक रहा है. इट्स प्रिवेंटिंग द लिक्विड फ्रॉम गेटिंग इनसाइड. बोथ ऑफ दिस प्रेशर्स आर इक्वल एंड thus the liquid is neither entering inside the straw nor the liquid is falling out of the glass. The liquid is in equilibrium state because both the pressures are equal. That is, both sides the pressures are maintained at equilibrium. But imagine a condition if the entire air inside the straw is taken out. If the entire air inside the straw is taken out, मैं इस पाइप के अंदर का, स्ट्रॉ के अंदर का सारा हवा को मैं निकाल दिया, तो ये पाइप के अंदर वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, अंदर का प्रेशर क्या हो जाएगा, फॉल, डिक्रीज कर जाएगा स्ट्रॉ के अंदर का प्रेशर. यानी बाहर का जो प्रेशर है, ये जो लिक्विड सरफेस पे जो प्रेशर लग रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो कंपैरेटिवली ज्यादा हो जाएगा. And then the liquid will start rushing inside the straw because उसको रोकने वाला अब तो प्रेशर है नहीं, हवा तो मैंने निकाल दिया. And the liquid will start coming inside the straw और वो फिर obviously the person who is sucking the drink उसके mouth में आएगा and he will be able to taste the liquid. Now how do we take out the air? By sucking. When we are sucking the drink with the straw, हम actually क्या करते हैं, हम हवा को निकाल देते हैं straw से. As a result, the pressure inside the straw falls down and comparatively the atmospheric pressure on the free surface of the liquid increases, which pushes the liquid inside the straw. And this is how we can drink. I think this is clear. इससे ज़्यादा explanation करने की ज़रूरत नहीं है, clear हो गया. ठीक है, अब हम next demonstration पे चलते हैं. The same thing is done when we fill a syringe with a liquid. ठीक है, हम लोग सबको इंजेक्शन लगा ही है बचपन में, हम सभी लोगों को. एंड वी हैव सीन हाउ द डॉक्टर फिल्स अप द सिरिंज एंड इंजेक्ट्स इट इनटू आवर बॉडी. तो वो क्या करता है, कैसे मेडिसिन को सिरिंज में डालता है. आई एम ड्राइंग अ सिरिंज, मेरा ड्राइंग इज नॉट वेरी गुड, बट देन ऑल्सो सपोज दिस इज द सिरिंज एंड हियर इज द नीडल, hollow needle, and here is the piston of the syringe. This can go up and down, and here is suppose the medicine in this bottle. ये एक bottle है, इसके अंदर medicine है, and the needle of this syringe is dipped inside the medicine. Okay, जैसे ही मैंने इसको dip किया, अपने आप syringe में liquid नहीं भर जाएगा, medicine नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि सपोज एयर इज प्रेजेंट ओवर हियर इनिशियली, तो ये पूरा पुश डाउन नीचे की तरफ, ये पिस्टन पूरी तरह से पुश डाउन रहता है, तो अंदर में कोई हवा नहीं रहता है. और जब हम उसको खींचते हैं ऊपर की तरफ, तो अंदर में तो हवा जा नहीं सकता, तो वैक्यूम तो नहीं रह सकता. टू फिल अप दैट वैक्यूम, दिस लिक्विड विल रश इनटू द सिरिंज. तो इमेजिन इफ इट इज पुल्ड हाफ, आधा मैं खींच के रखा हूं, तो आधा यहाँ पे हवा भरा हुआ है इस सिरिंज के अंदर, and atmospheric pressure is acting on the free surface of the medicine. So here this atmospheric pressure is pushing the liquid into the syringe, but then the air which is filled inside the syringe is also pushing, thus is also preventing the medicine from getting inside the syringe. So both the pressures are equal. Exactly same concept है previous जैसा. और मैं जब इसको पिस्टन को ऊपर खींच दूंगा, that means I am creating a vacuum inside the syringe. As a result, what will happen? To fill up that vacuum, or there is a low pressure region created inside the syringe, comparatively the
atmospheric pressure outside, which is on the free surface of the medicine, increases and thus the liquid or the medicine will flow into the syringe. Clear है? एकदम simple. Similar is the explanation for filling of ink into a fountain pen. एकदम same है, so I am not explaining it. The next one which I will explain is action of rubber suckers. This is also exactly same, but still I will explain it. Now, what is a rubber sucker? Rubber suckers are generally such mechanism which we use behind certain toys or something, which we can stick it to the walls, very slippery surfaces. Generally, if you go to some fairs, मेला वगैरह में जाते हो तो वहाँ पे कुछ इस तरह का खिलौना मिलता है, लाइक छिपकली और कुछ भी रबर का, जिसको हम दीवार पे वेरी स्मूथ दीवार पे चिपका के रख सकते हैं. इट हैज़ अ रबर सकर. उसको अगर बेस को देखें तो एक रबर सकर रहता है विच इज मेड अप ऑफ रबर, समथिंग लाइक दिस. आई एम जस्ट ड्राइंग द रबर सकर, ओके, not the entire toy. Now if it is made, suppose this is the wall, this is the wall and this is the rubber sucker. Now here what is filled in this region? Initially air is filled. So what happens if I push this rubber sucker? मैंने इसको push कर दिया, collapse कर दिया, तो ये air क्या होगा? निकल जाएगा यहाँ से. The air will come out from the base. एज अ रिजल्ट ये पूरा चिपका दिया मैंने इसको, अंदर में हवा नहीं है, तो नो प्रेशर फ्रॉम दिस रीजन, ओनली प्रेशर एक्टिंग विल बी द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्टिंग फ्रॉम आउटसाइड. तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि पहले जब मैंने इसको कोलैप्स नहीं किया था तब ये अंदर का जो प्रेशर था बाहर के तरफ एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्टिंग इनवर्ड्स, बोथ वर इक्वल, सो वो रबर अपने आप नहीं चिपक रहा था. लेकिन मैं जब उसको कोलैप्स करके अंदर का हवा निकाल दिया, सो इनसाइड प्रेशर डिक्रीजेस एंड कंपैरेटिवली द आउटवर्ड प्रेशर, कंपैरेटिवली द आउटसाइड प्रेशर हुज डायरेक्शन इज पुशिंग द रबर सकर टुवर्ड्स द वॉल इज मोर. तो ये चिपक के रह जाएगा. सो यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स इफ यू हैव अंडरस्टूड इट. ठीक है, आई एम इरेजिंग द एंटायर थिंग एंड देन आई विल एक्सप्लेन दिस साइफॉन. ये जो साइफन सिस्टम है जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसको बहुत यूज़ करते हैं हम लोग. कहाँ पे यूज़ करते हैं? मान लो कोई बाइक ख़राब हो गया है, गाड़ी ख़राब हो गई है, कार ख़राब हो गया है, और उस ख़राब गाड़ी के अंदर में तेल, द फ्यूल या पेट्रोल जो है वो उसके टंकी में है. सो आई वॉन्ट टू टेक आउट दैट फ्यूल, ठीक है, बिकॉज वो अब किसी काम का नहीं, वो गाड़ी चलेगी नहीं, तो मैं तेल को निकालना चाहता हूँ. सो वॉट विल आई डू? आई कैन नॉट मेक द व्हीकल अपसाइड डाउन एंड टेक आउट द एंटायर ऑयल. इट इज़ नॉट पॉसिबल कि मैं गाड़ी को पूरा उल्टा कर दूँ और तेल को निकालूँ. So I will take out the oil by using a system. बहुत आराम से हम लोग कर सकते हैं, साइफॉन सिस्टम. बट बहुत केयरफुली करना है कि हमारे बॉडी में हम ड्रिंक ना कर लें पेट्रोल को या डीजल को. तो पहले इसको समझो साइफॉन सिस्टम क्या होता है. आई विल एक्सप्लेन दिस यूजिंग अ सिंपल डायग्राम. हियर देयर इज अ कंटेनर, ठीक है, विच इज फिल्ड विथ वाटर. कोई भी कंटेनर, कप ले लो जिसमें चाय पीते हैं, ये कप है, इसमें पानी भर लो. एंड देन यू टेक अ स्ट्रॉ. कैसा स्ट्रॉ? एक बेंड स्ट्रॉ लो, जो मिलता है ना फ्रूटी या कोई भी कोल्ड ड्रिंक लेते हो तो बेंड स्ट्रॉ, इस तरह से मुड़ा हुआ स्ट्रॉ मिलता है, वो स्ट्रॉ ले लो. पुट दिस बेंड स्ट्रॉ ओवर देयर, ओवर हियर. ये एक्सपेरिमेंट डेफिनेटली करना, मजा आएगा. एंड बी श्योर दैट दिस लेवल, that is level A of the straw, this end of the straw is higher than the other end B. यानी जो B end है straw का वो नीचे होना चाहिए लेवल A के लेवल से. बस इतना ध्यान रखना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस तरह का नहीं सिचुएशन होना चाहिए कि एंड A नीचे है एंड B से, ये नहीं होना चाहिए. एंड B should be lower than एंड A in height. ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अभी अगर ऐसे में डालूं तो क्या ये लिक्विड अपने आप इस पाइप से बाहर आने लगेगा स्ट्रॉ से? आंसर इज नो. बिकॉज वाई? बिकॉज एयर इज फिल्ड इनसाइड दिस पाइप. सो ये एयर क्या कर रहा है? दिस एयर इज पुशिंग द लिक्विड आउटसाइड and preventing it to enter the pipe. At the same time, atmospheric pressure from the top of the free surface of the liquid is trying to push this liquid inside the straw. But both the pressures are equal and neither the liquid is entering into the pipe nor the liquid is overflowing the container.
बट इफ आई समहाउ रिमूव दिस एयर फ्रॉम इनसाइड दिस पाइप, एयर नहीं रहा अंदर में, देन विच प्रेशर विल बी मोर? अंदर का तो प्रेशर खत्म, डेफिनेटली एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल डोमिनेट एंड इट विल पुश द लिक्विड इनसाइड द स्ट्रॉ। और एक बार ही मैं हवा को निकाल दिया, ये पूरा यहां से लिक्विड से भर जाएगा और कंटिन्यूअसली गिरने लगेगा ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे गिरने लगेगा और कंटिन्यूअसली गिरने लगेगा। मुझे सिर्फ एक बार इनिशियली सक करके हवा को निकाल देना है, बस मुझे मुंह हटा लेना है उसके बाद से, और फिर कंटिन्यूअसली ये लिक्विड पूरा गिर जाएगा, अपने आप निकलते रहेगा। दिस विल कम आउट कंटिन्यूअसली अंटिल द एंटायर लिक्विड in that container has come out. It will fall continuously. So I have to suck just once. एक बार मैं सक करूंगा, जैसे ही मुझे लगेगा कि मेरे मुंह में पानी आ रहा है, यानी इस कंटेनर में अगर पानी भरा हुआ है तो मैं अपना मुंह हटा लूंगा, मीन्स आई विल स्टॉप सकिंग एनी फर्दर। सिर्फ मैंने हवा को निकाल दिया एंड इट विल कंटिन्यूसली कीप ऑन फ्लोइंग आउट। करके देखना, इट विल हैपन। सो दिस इज नोन एज साइफन सिस्टम एंड दिस इज व्हाट वी डू टू टेक आउट द फ्यूल्स और टू टेक आउट द डीजल और पेट्रोल इन द टैंक्स ऑफ द व्हीकल्स और बाइक। क्या करते हैं, हम इस तरह का एक पाइप डालते हैं और उसको सक तो नहीं करना चाहिए क्योंकि मेरे मुंह में वो तेल आ जाएगा, दैट इज हार्मफुल। आई कैन यूज एनी वैक्यूम सकर जो सक करके हवा को पाइप से बाहर निकाल दे, एंड जस्ट वंस द एयर कम्स आउट द ऑयल विल स्टार्ट कमिंग आउट ऑफ दैट टैंक ऑफ इटसेल्फ, अपने आप निकलने लगेगा और कंप्लीटली जब खाली हो जाएगा तब तक निकलने लगेगा। तो मैं इस तेल को कहीं कलेक्ट कर लूंगा, यहाँ नीचे कंटेनर में रख लूंगा where I will collect the oil from the vehicle. This is how we do it. This system is known as siphon system. You have to write exactly what happens, whatever I have explained, that you have to write point by point, and you have to be careful that the level of end A should be below the level of end B should be below the level of end A. This has to be taken care, क्योंकि तभी ग्रेविटी उसको नीचे खींच पाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स तभी एक्ट होगा इजीली। ठीक है, तो चलो इसको मिटा देते हैं। द नेक्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन इज द हियर विच इज टेकिंग आउट ऑयल फ्रॉम अ सील्ड ऑयल कैन। ओके, देखो सील्ड ऑयल कैन, अगर हमने लिया एक सील्ड ऑयल कैन, सपोज दिस इज एन ऑयल कैन, और ये कंप्लीटली फिल्ड है, किससे फिल्ड है? ऑयल से, और ये पूरी तरह से सील किया हुआ है, ऊपर नीचे सील्ड किया हुआ है। जनरली घी का जो डब्बा पहले आता था, आजकल उस तरह का नहीं आता है, कैन में, मेटेलिक कैन में घी आता था। एंड आई हैव सीन इट कमिंग इन माई हाउस। आई हैव सीन माई मदर व्हेन आई वाज स्मॉल मेकिंग 2 holes on one side over here, I'm drawing with another blue color, one side over here and one side at the bottom। 2 अलग अलग ऑपोजिट सरफेस पे 2 होल्स बनाती थी, one over there, one over here, and then she would take out the entire ghee very easily without cutting the entire seal। सिर्फ 2 होल बनाती थी ऊपर नीचे और पूरा घी निकल आता था, दूसरा कंटेनर में उसको डाल के रखती थी। There was a separate container for storing ghee where we used to store the ghee. So why did we make 2 holes? Now this is very important. So if we want to take out oil also from a sealed oil can, we do the same thing. We make 2 holes on 2 opposite faces of the can. What happens? Suppose मैंने ऊपर में एक होल किया और नीचे होल किया, अगर तो उसमें क्या होगा ना, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस होल से अंदर के तरफ इस तेल पर प्रेशर डालेगा और इजीली ये ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से नीचे गिरने लगेगा। दैट मीन्स देयर आर 2 forces which are helping this oil to come out from this hole A। होल A से 2 फोर्स की वजह से ये तेल या घी जो भी है निकल रहा है। वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी जो इसको नीचे की तरफ खींच रहा है, दूसरा ऊपर से एयर थ्रस्ट, एयर कॉलम का थ्रस्ट लग रहा है, दैट फोर्स। सेकेंड जो फोर्स है वो है थ्रस्ट ड्यू टू एयर कॉलम, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोल सकते हैं। सो दीज आर द 2 forces which are helping the oil to come out। तो 2 फोर्स लगेगा तो आराम से निकलेगा ना। और अगर मैं सिंगल होल करता हूँ, ऊपर की तरफ होल मैंने नहीं किया, सपोज सिर्फ नीचे की तरफ यहाँ होल किया, तो यहाँ पे भी गिरेगा, लेकिन कौन सा फोर्स एक्ट करेगा, उसके वजह से गिरेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स विल एक्ट, सिर्फ गिरेगा। लेकिन ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो एक्ट नहीं कर रहा है,
रादर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसको थोड़ा बहुत अंदर के तरफ पुश कर देगा. सो गिरना फिर दिक्कत है. आई हैव टू गिव जर्क्स एंड शेक, देन इट विल फॉल डाउन लिटिल बाय लिटिल. तो उसमें डिफिकल्ट है. मेरे लिए इजी होगा कि मैं 2 होल्स करूं और आराम से निकालूं, क्योंकि 2 फोर्सेस यहाँ पे काम कर जाएंगे. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. वेरी सिंपल, यू कैन राइट डाउन इन योर ओन वर्ड्स. ओन वर्ड्स का ये मतलब नहीं है कि वहाँ पे ऐसे लिख दें हम जाके. टू द पॉइंट आंसर लिखना है, लेकिन कॉन्सेप्ट को एकदम समझ के टू द पॉइंट आंसर लिखना है. अपने शब्दों में लिख सकते हैं. ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट हाउ डू वी मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो ये टॉपिक देख लो, लिखो. मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसको मेजर करना, नापने के लिए, मेजर करने के लिए हम एक डिवाइस यूज करते हैं, उसे बोलते हैं बैरोमीटर. तो ये डेफिनेशन आता है कि व्हाट इज अ बैरोमीटर, या फिर आता है नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो इसको लिख लो. अ बैरोमीटर is an instrument which is used to measure the atmospheric pressure. So here the first type of barometer that we will be studying is simple barometer. इसमें क्या है, इसका कंस्ट्रक्शन समझो, बड़ा सिंपल है. सिंपल बैरोमीटर, नाम ही है सिंपल, और सिंपल भी है. तो मैं इसको मिटा देता हूँ और फिर से स्क्रीन का यूज करता हूँ, एंड आई विल एक्सप्लेन दिस. नाउ हियर व्हाट हैपेंस, एक एक चीज को समझो. यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड. वी विल टेक अ हार्ड ग्लास ट्यूब. क्या वर्ड यूज किया मैंने, हार्ड ग्लास ट्यूब लेंगे ऑफ 1 मीटर लेंथ. ये कंपलसरी है, जनरली हम लोग ये स्टैंडर्ड लेंथ का यूज करते हैं. 1 मीटर लेंथ हम यूज करेंगे अ हार्ड ग्लास ट्यूब. ये जो इस तरह का कांच का, इट इज नॉट टेस्ट ट्यूब. ये टेस्ट ट्यूब से मोटा होता है, टेस्ट ट्यूब से लंबा होता है, एंड हार्ड भी होता है. इट लुक्स लाइक अ टेस्ट ट्यूब, अ बिगर टेस्ट ट्यूब. नाउ द लेंथ इज 1 मीटर of this hard glass tube, कांच का है. I will completely fill it with what? With mercury. Completely मैंने इसको मर्करी से फिल करना है. तो सेकेंड चीज जो आना चाहिए तुम्हारे एक्सप्लेनेशन में है, वो है completely filled. सिर्फ फिल्ड नहीं, completely filled with mercury होना चाहिए. उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं अपना थंब यहां पे रखूंगा और अपने थंब से इस ग्लास ट्यूब को बंद करूंगा और फिर कई बार अप डाउन शेक करूंगा उसको. इससे क्या होगा कि कुछ भी अगर एयर बबल यहां पे अंदर में रह गया है, वो एयर बबल निकल जाएगा. एंड फिर मैं इंश्योर करूंगा कि ये टॉप तक पूरा भरा हुआ है. दैट मीन्स अगर टॉप तक भरा हुआ है कंप्लीटली, दैट मीन्स देयर इज नो एयर बबल इनसाइड इट. सो वी हैव टू एंश्योर दैट इट इज कंप्लीटली फिल्ड विथ मर्करी एंड नो एयर बबल is inside this mercury. ये तीसरा पॉइंट है. ठीक है, सो पहले हार्ड ग्लास ट्यूब लेना है 1 मीटर लेंथ का, कंप्लीटली फिल्ड विथ मर्करी करना है और थंब से बंद कर देना है एंड एंश्योर दैट देयर इज नो एयर बबल. नाउ व्हाट डू वी डू, हम एक कंटेनर लेंगे जिसमें ऑलरेडी मर्करी भरा हुआ है. ऑलरेडी जिसमें क्या भरा हुआ है, मर्करी भरा हुआ है. और मैं बड़ी सावधानी से इस हार्ड ग्लास ट्यूब को उल्टा करके, यानी अपना थंब पोजीशन नीचे रहेगा, उल्टा करके थंब विल बी बिलो, और मैं इसको इन्वर्ट करके इन्वर्टेड पोजीशन में बड़ी केयरफुली मैं इसको इस कंटेनर में, इस ट्रो में जिसमें मर्करी रखा है उसमें डाल दूंगा. और फिर डालने के बाद मैं अपना अंगूठा को हटाऊंगा सो दैट नो एयर फ्रॉम आउटसाइड एंटर्स इनटू इट. तो मैं थंब को लगाते हुए ही, थंब से बंद करते हुए ही मैं अपना उंगली के साथ इस ट्रो में इस इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब को डालूंगा. फिर मैं इस थंब को हटाऊंगा. उससे क्या होगा कि मर्करी ही मर्करी रहेगा अंदर में, हवा नहीं जा पाएगा. तो कुछ इस तरह का फिर दिखेगा. ये इन्वर्टेड ट्यूब है,
जिसके अंदर मरकरी ऑलरेडी भरा हुआ था, कंप्लीटली भरा हुआ था, और फिर मैंने उसको इन्वर्ट करके मरकरी ही में डाल दिया, मरकरी भरा हुआ एक ट्रो में मैंने उसको डाल दिया. नाउ व्हाट विल हैपन, विल सी दैट द लेवल ऑफ मरकरी फॉल्स डाउन, अपने आप मरकरी लेवल गिरता है, और यहाँ पे कुछ एम्प्टी स्पेस क्रिएट होता है इस रीजन को, जिसको मैंने रेड से अभी दिखाया. An empty region is created and here it is completely filled with mercury. This is mercury. तो ये जो हाइट गिरता है, ये क्यों गिरता है? क्योंकि एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर इनसाइड एंड आउटसाइड दोनों को इक्वल होना चाहिए, तभी वो इक्विलिब्रियम में रहेगा. तो ये अपना इक्विलिब्रियम स्टेट में आने के लिए कुछ मर्करी लेवल गिरता है, बिकॉज द प्रेशर इनसाइड द ट्यूब वॉज मोर, सो इट फॉल्स डाउन टू मेंटेन द प्रेशर इक्विलिब्रियम. अभी क्या होगा, कुछ देर बाद ये मर्करी लेवल गिरने के बाद रुक जाता है, इट डज नॉट फॉल फर्दर बिलो. अब ये जो रुक गया, इस हालत में क्या होगा, इस हालत में यहाँ पे फ्री सरफेस पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, दैट प्रेशर, जिसको मैं पी नॉट से डिनोट कर रहा हूँ, रेड एरो से जो मैंने डिनोट किया, साथ ही साथ जो प्रेशर ये ग्लास ट्यूब के अंदर का मरकरी जो लगा रहा है इस बाहर के तरफ, टू प्रिवेंट एनी मरकरी फ्रॉम कमिंग इनसाइड, ये दोनों प्रेशर, जिसको मैं यहाँ पे पी डैश से डिनोट कर रहा हूँ, दोनों प्रेशर बराबर हो गया. पी नॉट इज ट्राइंग टू पुश द मरकरी इनसाइड द हार्ड ग्लास ट्यूब एंड पी नॉट इज द प्रेशर ट्राइंग टू कीप अवे और प्रिवेंट द मरकरी फ्रॉम एंटरिंग इनटू द ग्लास ट्यूब. सो बोथ दिस प्रेशर्स आर इक्वल. जब ये कंडीशन हो जाएगा तो ये लेवल ऑफ मरकरी फॉल नहीं करेगा फर्दर बिलो. यहां पे क्या क्रिएट होगा, एयर तो आ ही नहीं सकता कहीं से, तो यहां पे जो स्पेस क्रिएट हुआ, ये एक वैक्यूम क्रिएट होगा. दिस वैक्यूम इज बीइंग क्रिएटेड. इस वैक्यूम का नाम, स्पेशल नाम दिया गया है, उसे बोला जाता है टॉरिसिलियन वैक्यूम. लिख लो, टॉरिसिलियन वैक्यूम. और देखा गया है ये जो हाइट, कौन सा हाइट, यहां पे जहां पे ये द माउथ ऑफ द ग्लास ट्यूब एंड द लेवल ऑफ मर्करी, ये जो हाइट है, समझ रहे हो ना कौन सा हाइट, हाइट ए बी. दिस हाइट इज नोन एज बैरोमेट्रिक हाइट. इस हाइट को क्या बोला जाता है, बैरोमेट्रिक हाइट. तो ये हाइट जो है ना, जनरली अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे हम करें, इसको मेजरिंग करें कहीं पे भी, तो ये हाइट देखा गया है कि 0.76 मीटर रहता है. ये हाइट कितना रहता है, बैरोमेट्रिक हाइट 0.76 मीटर. यानी कितना अमाउंट ऑफ मर्करी गिरा, पहले मैंने लिया था 1 मीटर लिया था ना, 1 मीटर से अभी कितना हो गया 0.76 मीटर. तो ये जो डिफरेंस है, उतना मर्करी लेवल गिर गया. तो ये हाइट जो है, ये वैक्यूम का हाइट है, टॉरिसिलियन वैक्यूम का हाइट है 1 मीटर माइनस 0.76 मीटर. तो ये गिरता है. ये नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर में करेंगे, हर जगह में, वर्ल्ड के हर जगह में करेंगे तो होगा. लेकिन मोर और लेस अर्थ का जो हर जगह का प्रेशर थोड़ा बहुत इधर उधर रहता ही है, क्योंकि एयर प्रेशर कुछ ना कुछ वैरी करता है, ऑल्टीट्यूड पे वैरी करता है, तो मोर और लेस चेंज होता है, बट इट रिमेन्स स्टैंडर्ड. जनरली इट रिमेन्स द सेम, थोड़ा बहुत इधर उधर है. इट इज 0.76 मीटर शो होता है. तो इसी मीटर को हम, इसी को हम एक स्टैंडर्ड मान लिए हैं. ये जो 0.6 मीटर है ना, 0.6 मीटर ऑफ मर्करी, इसी को हम क्या बोलते हैं, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 0.1 एम ऑफ मर्करी, जिसे हम 0.76 एम को, जिसे हम 760 मिलीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, तो 760 mm ऑफ मर्करी. ये खुद से एक यूनिट बन गया है अब से, क्योंकि ये यूनिट की तरह हम ट्रीट कर सकते हैं. जब भी 760 mm ऑफ मर्करी हुआ, तब हम इसे बोल देंगे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. और पैस्कल में बोलेंगे तो 1.01 इंटू 10⁵ पैस्कल. ठीक है, तो ये इसी को हम बोल सकते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो ये हमने स्टैंडर्डाइज कर दिया. अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसी जगह में इंक्रीज कर गया, सोचो, इफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीजेज एट सम प्लेस, तो ये हाइट बढ़ेगा कि घटेगा? थिंक एंड टेल मी, व्हाट विल हैपन टू दिस हाइट? If atmospheric pressure increases, that means the pressure on the free surface of the mercury is increasing. Definitely this will push the mercury inside this hard glass tube and barometric height will increase. यानी अगर किसी जगह में हम देख रहे हैं ये हाइट 0.78 मीटर है, 0.76 मीटर नहीं है, तो हाइट बढ़ा हुआ है बैरोमेट्रिक हाइट, तो मैं बोलूँगा कि वहाँ का प्रेशर ज़्यादा है 0.76 के कंपैरिजन में. और अगर कभी ऐसा हुआ
कि ये 0.75 मीटर है, नॉट 0.76, 0.75 मीटर है। उसका मतलब क्या हुआ कि ये हाइट गिर गया है, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज कर गया है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग मेजर कर सकते हैं। अब हम यहाँ मर्करी ही क्यों लेते हैं? वाई डू वी सिलेक्ट मर्करी ओनली? वाई डोंट वी सिलेक्ट वाटर एज अ बैरोमेट्रिक फ्लूइड? So there are reasons, and those reasons are important for your exam also. We will see to that now only in this video. Okay, ये समझ में आ रहा है कि कैसे ये काम कर रहा है। Now one thing to understand over here कि even if I bend the, और इसको हम झुका दे, इसको हम even if I tilt the tube, इसको tilting कर दें, then also the height of mercury will not change. So the barometric height does not depend on the tiltation of this tube. इसको अगर तुम tilt भी करो ना, कुछ इस तरह से, मैं इधर बना रहा हूँ, जैसे ये मरकरी में रखा हुआ है और ये जो tilt किया हुआ तुम्हारा ट्यूब है, तो उसका भी ये जो हाइट रहेगा ना, परपेंडिकुलर हाइट 0.76 m ही रहेगा, मीटर ही रहेगा। So it does not depend whether it is perfectly horizontal, vertical or tilted. The height remains, the barometric height remains the same. So this is a standard value. If I go to higher altitudes, बहुत इसको मैं डिलीट करता हूँ, अगर मैं हायर ऑल्टीट्यूड्स में जाऊंगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का क्या होगा? सो इसको लिख लो, एट हाई ऑल्टीट्यूड्स, ऑल्टीट्यूड्स मतलब हाइट पे मैं जाऊंगा, जैसे मैं हिमालय पे चढ़ गया, माउंट एवरेस्ट पे, तो देखो इसको डायग्राम से समझो। ये मान लो अर्थ है, यहाँ पे तुम खड़े हो, दिस इज यू, तुम्हारे ये एटमॉस्फेयर है, एयर कॉलम है, थोड़ा सा डेंजरस बन गया था, ऐसे बनाते हैं, ये एटमॉस्फेरिक एयर कॉलम है, तो तुम्हारे ऊपर ये एयर कॉलम का लेंथ, हाइट ऑफ एयर कॉलम है h, तो तुम्हारे ऊपर प्रेशर लग रहा है ड्यू टू दिस h, हाइट ऑफ एयर कॉलम विच आई हैव शेडेड विद ग्रीन। नाउ सपोज हियर इज माउंट एवरेस्ट, अ हिल, माउंट एवरेस्ट, एंड यू गेट ऑन दिस हिल, अब तुम चढ़ गया, माउंट एवरेस्ट क्लाइम कर गया, अब तुम्हारे ऊपर जो एयर कॉलम है उसका हाइट क्या हो गया? डिक्रीज कर गया ना, नाउ ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ h डैश, अभी जो हाइट है बहुत कम है h के कंपैरिजन में। दैट मीन्स व्हेन वी गो एट हायर ऑल्टीट्यूड्स द हाइट ऑफ द एटमॉस्फेरिक कॉलम, एयर कॉलम डिक्रीजेस। तो हमें पता है कि फ्लूइड का प्रेशर h rho g पे डिपेंड करता है, कोई भी फ्लूइड, इट इज नॉट ओनली फॉर लिक्विड, इवन फॉर गैसेस ऑल्सो। ये हाइट जब डिक्रीज कर गया तो हमारा प्रेशर भी डिक्रीज कर जाएगा, तो वहीं पे डायरेक्टली हम लिख सकते हैं एट हाई ऑल्टीट्यूड्स द एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस। और फिर ऑब्वियसली एट लोअर ऑल्टीट्यूड्स, जब नीचे आएंगे, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीजेस। नीचे आओगे तो एयर कॉलम का हाइट बढ़ेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज होगा। तो यहीं पे ये बैरोमीटर जो हमने अभी एक्सप्लेन किया था, सिंपल बैरोमीटर, इफ यू टेक द सिंपल बैरोमीटर ऑन हायर ऑल्टीट्यूड्स, सपोज यू गो इन माउंट एवरेस्ट, यू विल सी दैट देयर इज अ फॉल इन द हाइट ऑफ द मर्क्यूरी, बैरोमेट्रिक हाइट में फॉल होगा, क्योंकि वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज कर जाता है एज कंपेयर टू लोअर ऑल्टीट्यूड्स। ठीक है, सो नाउ is the time that we will write why do we use mercury as a barometric fluid. इसको समझते हैं, एग्जाम में आता है as a barometric fluid. So advantages of using, लिखो मेरे साथ, advantages of using mercury as a barometric fluid. So बैरोमेट्रिक फ्लूइड मतलब बैरोमीटर में जो फ्लूइड हम यूज कर रहे हैं, कौन सा यूज कर रहे हैं? मर्करी। क्यों मर्करी यूज कर रहे हैं, उसका क्या एडवांटेज है? सबसे पहला, द डेंसिटी ऑफ मर्करी इज ग्रेटर देन एनी अदर लिक्विड। कोई भी दूसरा लिक्विड से ये डेंसिटी ऑफ मर्करी ग्रेट ज्यादा होता है। तो इसके वजह से क्या है ना कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर का इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए सिर्फ 0.76 मीटर का हाइट से ही हो जाता है। अगर हम वाटर लेंगे तो उसका डेंसिटी बहुत कम होता है,
तो हमें काफ़ी हाइट वाला, हमें काफ़ी लंबा हाइट वाला हमें बैरोमीटर लेना पड़ेगा वो इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए। सो कितना डिफिकल्ट हो जाएगा। सो इसको हम कंटिन्यू करते हैं। सो ओनली 0.76 मीटर ऑफ height of mercury column is needed to balance the normal atmospheric pressure. ये पहला रीजन है। यूज ऑफ एनी अदर लिक्विड्स रिक्वायर मच लॉन्गर ट्यूब। तो हम लॉन्गर ट्यूब का यूज क्यों करेंगे जब हमें छोटा हाइट से ही हो जाता है? तो वी विल प्रेफर डेफिनेटली मर्करी। नंबर 2, द वेपर प्रेशर of mercury is negligible. So the vapors in the torricellian vacuum वैक्यूम का स्पेलिंग ध्यान देना, VACCUM होता है। बहुत लोग VCCW, सॉरी हमने यहाँ गलत लिखा है, VACCWM होता है। बहुत लोग VACCUM लिखते हैं, दिस इज रॉन्ग, VACWM, ठीक है। सो टॉरिसिलियन वैक्यूम डज नॉट affect the barometric height. तो इसमें ये पॉइंट को समझो क्या हो रहा है। अभी हमने बताया था कि ये इन्वर्टेड तुम्हारा ट्यूब है, मर्क्यूरी ट्यूब, ग्लास ट्यूब, और इसके अंदर मर्क्यूरी भरा हुआ है। नाउ दिस हाइट इज, दिस वैक्यूम इज नोन एज टॉरिसिलियन वैक्यूम। अच्छा, इस टॉरिसिलियन वैक्यूम में बिल्कुल वैक्यूम रहना चाहिए, इसमें कुछ भी नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर मैं एज अ बैरोमेट्रिक फ्लूइड मैं वाटर यूज करूं तो वाटर का क्या है ना, वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है, तो इजीली वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो मैं ये इसको अगर मैं लेके जाऊं थोड़ा सा भी बाहर में धूप में, तो इवेपोरेशन होगा, गर्म हो जाएगा ये पानी, एंड इवेपोरेट करके यहाँ वाटर वेपर आ जाएगा इस टॉरिसिलियन वैक्यूम में, एंड दैट विल गिव एरर्स इन माई रीडिंग्स बिकॉज दैट प्लेस टॉरिसिलियन वैक्यूम शुड बी वैक्यूम, कंप्लीटली वैक्यूम होना चाहिए। वहाँ पे एयर कोई गैस लाइक वाटर वेपर नहीं होना चाहिए। तो ये जो मर्करी है इसका वेपर प्रेशर बहुत कम होता है। ऐसा नहीं है कि मर्करी का वेपर नहीं होता है, इसका भी टेम्परेचर हल्का बढ़ेगा, इवेपोरेशन होगा, वी विल गेट वेरी लेस अमाउंट ऑफ मर्करी ओवर हियर, नेग्लिजिबल। इसलिए क्या लिखा हुआ है, वेपर प्रेशर ऑफ मर्करी इज नेग्लिजिबल एंड इट डज नॉट अफेक्ट द टॉरिसिलियन वैक्यूम ओवर हियर। नो मेजर एरर कम्स, वेरी नेग्लिजिबल एरर्स कम ड्यू टू दैट वेपर प्रेशर ऑफ मर्करी विच इज वेरी नेग्लिजिबल। ठीक है, सो ये सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट एंड फोर्थ पॉइंट एंड फिफ्थ पॉइंट दे आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। थर्ड ये है कि द मर्क्यूरी नाइदर वेट्स, भीगता नहीं है, ग्लास को भिगाता नहीं है, नाइदर वेट्स नॉर स्टिक्स टू द ग्लास, चिपकता भी नहीं है ग्लास से और ग्लास को भिगाता भी नहीं है इस ग्लास ट्यूब को। Therefore it gives accurate reading. Therefore it gives accurate reading. अगर ये यूज करते हम लोग पानी, then what would have happened? The water would have got sticked to the glass tube. तो वो जो हाइट अप डाउन करना है, जब उसको प्रेशर हाई प्रेशर रीजन में ले जा रहे हैं वाटर लेवल बढ़ेगा, जब लो प्रेशर रीजन में ले जाएंगे वाटर लेवल घटेगा। तो वाटर लेवल बढ़ने और घटने से बैरोमेट्रिक हाइट का उसमें पानी चिपक जाएगा उसके
ट्यूब में, and that will give me wrong readings. I want that mercury, this barometric liquid should not stick with the glass. It should freely rise up and freely rise down. So ये mercury में हम achieve करते हैं. It neither wets nor sticks to the glass. Therefore it gives accurate reading. Fourth, the surface of mercury is shining. देखिए होगे मर्करी शाइन करता है, लस्टर होता है उसमें, मेटेलिक लस्टर, और मर्करी मेटल भी है. सो मर्करी का जो सरफेस है इट इज शाइनिंग एंड ओपेक. ओपेक होता है, ट्रांसपेरेंट नहीं होता है. देयरफॉर इससे क्या फ़ायदा? इससे ये कि हमें रीडिंग देखने में सुविधा होगा. देयरफॉर इट इज़ ईजीली सीन while taking the observation. If I use water, पानी शाइन भी नहीं करता उस तरह से और ओपेक भी नहीं होता, ट्रांसपेरेंट होता है. सो इससे पानी से हमें रीडिंग लेना बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा. ट्रांसपेरेंट होगा तो डिफिकल्ट लगता है. इसीलिए हम थर्मामीटर में भी हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं? जनरली मर्करी यूज़ होता है ना. आजकल तो हम लोग डिजिटल थर्मामीटर यूज़ करते हैं, लेकिन मर्करी थर्मामीटर्स में मर्करी यूज़ होता है एज थर्मामेट्रिक फ्लूइड. वाई? बिकॉज मर्करी में बहुत सारे रीजंस है. वन ऑफ द रीजंस इज दैट मर्करी इज शाइनिंग एंड इट इज ओपेक, तो रीडिंग लेना आसान होता है. फिफ्थ पॉइंट, इट कैन बी easily obtained in a pure state. तो मर्करी एक मेटल है, एक एलिमेंट है, और इसको प्योर स्टेट में यानी Hg प्योर स्टेट में आराम से हम ऑब्टेन कर सकते हैं बिना इम्प्योरिटीज़ के. और इम्प्योरिटीज़ भी रहा तो इम्प्योरिटीज़ को अलग करना बहुत आसान है मर्करी से. सो इजीली प्योर स्टेट में अवेलेबल है, झंझट नहीं है, तो हम लोग यूज़ करते हैं. ये पांचों पॉइंट्स याद कर लेना, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ मर्करी यूजिंग अ बैरोमेट्रिक फ्लूइड. और ये भी आता है व्हाई डोंट वी यूज वाटर, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग वाटर. तो मैं इसको उतना ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि ऑलरेडी ये तुम लिख पाओगे. सो इसको मैं जस्ट कीवर्ड्स लिख दूंगा. डिसएडवांटेज, चलो जल्दी लिखो मेरे साथ साथ. डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग वाटर एज अ बैरोमेट्रिक फ्लूइड. ये तुम लोग अपने से लिख सकते हो क्योंकि मैंने साथ ही साथ पानी का भी बताते हुए एक्सप्लेन किया था. पानी का क्यों यूज नहीं करेंगे? सबसे पहला, पानी का जो डेंसिटी होता है वो क्या होता है? लो होता है. एज अ रिजल्ट आई विल नीड अ वेरी लॉन्ग ट्यूब टू अचीव द पर्पस टू बैलेंस द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर. इट इज इनकन्वीनियंट फॉर मी. सेकेंड, वेपर प्रेशर की बात मैंने किया था. वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज हाई. सो हमारा रीडिंग क्या आ जाएगा? इनएक्यूरेट, बिकॉज इट विल अफेक्ट द टॉरिसिलियन वैक्यूम. अफेक्ट द टॉरिसिलियन वैक्यूम. ठीक है. TORRICELLIAN. टॉरिसिलियन का स्पेलिंग मेरा गलत है, तुम लोग सही कर लो. TORRICELLIAN. टॉरिसिलियन वैक्यूम को ये अफेक्ट करेगा. थर्ड पॉइंट, वाटर विल स्टिक टू द ग्लास एंड इट विल गिव इनएक्यूरेट रीडिंग. फोर्थ पॉइंट, वाटर इज ट्रांसपेरेंट, ओपेक तो है नहीं, और इसके लिए मुझे डिफिकल्ट होगा इन ऑब्जर्वेशंस, इन टेकिंग द ऑब्जर्वेशन. ये चार रीजन आ सकता है. ठीक है. इसके अलावा एक और टॉपिक सिंपल बैरोमीटर से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है डीमेरिट्स ऑफ यूजिंग अ सिंपल बैरोमीटर. हम लोग जनरली सिंपल बैरोमीटर यूज नहीं करते हैं. ये तो एक इसका मॉडिफाइड वर्जन है, उसको यूज करते हैं. ये एकदम बेसिक और प्राइमरी लेवल का बैरोमीटर है, इसे यूज नहीं करते हैं. तो इसका क्यों यूज नहीं करते? इसका डीमेरिट्स है कुछ. लेट अस सी दैट. डीमेरिट्स ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ अ सिंपल बैरोमीटर. नंबर 1, ये जो कांच है ये खुला रहता है, आराम से टूट सकता है. सो देयर इज नो प्रोटेक्शन फॉर द ग्लास ट्यूब. अच्छा, दूसरा चीज, ये जो ट्रो हमने रखा इसके अंदर मर्करी है, इसको तो हम कवर नहीं कर रहे हैं, मर्करी ओपन है,
तो आराम से इसमें इम्प्योरिटीज पड़ने का चांस बहुत ज़्यादा है. द सरफेस ऑफ मर्करी इन द थ्रो is open and therefore there are chances that the impurities may fall in. और इम्प्योरिटीज गिरने से क्या होगा, हमारा मरकरी के साथ मिल जाएगा एंड इट विल गिव इनएक्यूरेट रीडिंग्स. ठीक है, तो जनरली 2 पॉइंट्स ही आता है, राइट. 2 डिमेरिट्स ऑफ अ सिंपल बैरोमीटर, 2 मार्क्स का क्वेश्चन. थर्ड पॉइंट भी लिख लो, इट विल बी सेफ. नाउ दिस मर्करी बैरोमीटर, सिंपल बैरोमीटर, इट इज नॉट कन्वीनियंट फॉर मी टू टेक फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. इट्स वेरी डिफिकल्ट, राइट. तुम समझ सकते हो, नीचे एक ट्रो है मर्करी से भरा हुआ, ऊपर में एक इन्वर्टेड कांच का ट्यूब है. इज इट वेरी इजी टू कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर? नो. So this is a demerit. It is inconvenient. To move the barometer from one place to another. So these are the 3 demerits of simple barometer. इसके बाद एक मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ दिस बैरोमीटर है, वो है फॉर्टिन्स बैरोमीटर, जो हम लोग इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे, बाद में करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में. सो टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड गॉड ब्लेस यू माय डियर स्टूडेंट्स.